नाज़रीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 से इस वक्त मैं शहर चेन्नई में हूँ। शोबे अरबी फारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम बइश्तिराक कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से 2 रोज़ा कौमी उर्दू सेमिनार बउनवान उर्दू में इंशा परदाजी रिवायत मसाइल और इम्कानात बरोज़ पीर 1 मार्च 2021 को अमल में आया। इसकी सदारत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर यस गौरी वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया। इसमें मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर मुजफ्फर शामिरी वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल ने किया और इस सेमिनार में कलीदी खुतबा जनाब प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरेस ने किया। ये हम जानते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। किया है सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है, इस इल्म के मरकज ने बड़े काम किए हैं, काम किए हैं। शुक्रिया। Madras, particularly the Department of Arabic and Persian and Urdu, has produced several stalwarts. One living example is in front of us, Professor Muzaffar Ali Shahmiri Sahab. He is also an alumni of this department, he is a vice chancellor. And this department has produced several IAS officers, IPS officers, who is working in the revenue departments, even vice chancellors. More 2 or 3 vice chancellors also from this department. The President of this function, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. S. Gauri, Dr. Abdullah University, Professor Nasimuddin Fareed Sahib, Dean and Head, Department of Urdu, Maulana Azad National University, Dr. Amanullah, Asatidai Kiram, Naba wa Talibat, Shura wa Udaba. It is a great honor for us that our beloved Vice Chancellor, Professor Dr. S. Gauri has graced the occasion and has enlightened the 2-day National Urdu Seminar with his august presence. Our beloved Vice Chancellor is a towering personality, well known to the academic fraternity, is a true academician, great educationalist, keen researcher, exemplary scholar, and of course a dedicated teacher. Occasion today, we are profusely thankful to you, sir. जनाब प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी साहब उर्दू के सच्चे खिदमतगुजार, तदरीसी व तहकीक की दुनिया का एक ताबिंदा सितारा, माहिर तालीम, असीम उस्ताद और सबसे बढ़कर ये कि एक अजीम इंसान है। Maulana Azad National Urdu University. Examination time and in view of COVID-19 also, we have own department students who are giving examination today, and so many requests. However, it is our privilege that most of the people have attended this program. Even my colleagues from the department, Professor Prabhu from Department of Microbiology, Professor Anand from Department of Genetics, Professor Murugan from the Department of Sanskrit, Professor T.M. Sridhar from the Department of Analytical Chemistry, our own colleague Dr. Zahir Hussain, and Professor Vani Arivalan from the Department of Tamil, and Professor Nirmala Singh from the Department of Tamil Language. All are here. I welcome you all. नादान तो बहरे अजीज के बाहर ना आ सके, रब की जो नेमतें हैं मारिफ ही पा सके।
काम हो जानवर हो सही पे यही सिखाए, जो कुछ मैसर आए सभी मिल के बांट खाए। इल्म सीखते रहना है ताहयात, उस पर अमल भी करना यही है रहे नजात। कान और हुरूफ जरूरत है जीस की, हाँ असल में तो फर्द की दो आंखें हैं यही पावलियत की। जाहिर तो देखने को नजर आए अच्छे ही, जैसे हंसी लगती हैं ये गुड़ियां मिट्टी की। Any difference between the both the languages except the spirit. Moreover, this Urdu translation of Tirukkural, which brought the fantastic foreword written by our honorable Vikin, பேசும்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் See, Madras University, that wherever he goes from Kashmir to Kanyakumari and from this part, Mustafa Sahiba, Bibi sir. Wonderful handling to them. We are really thankful to you, sir. मेहमाने सदारती कलिमात और इफ्तिताही किताब के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर एस गौरी साहब, क्योंकि वहाँ इसका मेन सा किताब उर्दू भाषा की विकास पर के इस कार्यक्रम में भाग लेने पर मुझे खुशी करने की योजना बनाई। मद्रास विश्वविद्यालय उर्दू विभाग का हर संभव मदद करेगा। எங்கள் ஊர்ல எல்லாம் நாங்கள் சலாம் அலைக்கும் சொன்னா வலைக்கம் அஸ்லாம் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு அப்புறம் சேர்த்து சொல்லலாம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம். அதாவது இந்த பர்கத் ரஹ்மத் தௌலத் இதெல்லாம் இருந்தா கொஞ்சமே கிடையாது. இந்த மிக அருமையான ஒரு கவிதையை பேராசி பர்வீன் ஃபாத்திமா அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள். அதை படிக்கின்ற பொழுது மிக்க மகிழ்வாக இருந்தது. அவர்கள் கூறிய அனைத்தும் த ஸ்டார் வார்ஸ் தன்னால் அப்படி தூக்கி எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு சண்டை போட்டோம்னா और दावत देता हूँ कि आप आए हमारे सामीन से खिताब फरमाए। प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमरी साहब वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी के आए वो सामीन से खिताब फरमाए। This University of Madras is very lucky to have a young, energetic and very active vice chancellor. जबान नहीं, हमको दो तीन जबानें 4 जबानों पे हमें बोल हासिल होना चाहिए। तभी हम किसी ऐसे मुल्क पे जहाँ पर बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, बहुत कल्चर हो, वहाँ हम कामयाब हो सकते हैं। मैं अपनी सेमिनार में शिरकत करते हुए इंतहा मसरत हो रही है। वजह इसकी ये है कि मौजू बहुत ही कारआमद है, बहुत मुफीद है, लेकिन मेरे ख्याल में एक शर्त के साथ ये बहुत कारआमद हो सकता है या इसकी इफादियत में ज़्यादती हो सकती है। अगर किया तो हजरत ने पूछा कीड़ा कैसा था, कुछ समझा सकते हो कीड़ा कैसा था? तो बच्चा जो कहता है वो कुछ इस तरह कहता है कि कीड़ा छोटा सा था, उसकी मूछें तलवार जैसी थी, आंखें हीरो की तरह चमक रही थी और उसके जो पर थे वो हीरा के मखमली चादर की तरह थे। ये सुनकर हजरत हसन ने चिल्लाकर कहा कसम खुदा की मेरा बेटा शायर हो गया। बात से मुझे हौसला मिला और मैं अपनी एक तंदावजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस मौजू पर सिलसिला कलाम के आगाज से कबल मैं ये मारूजा पेश करना चाहता हूँ कि ये नहायत कसीरुल जहद और वसीउल अतराफ मौजू है जो एक ज़ख़ीम और तफसीली में खाने का मुतखासी है। एक मुख्तसर मज़मून में इसकी समाई मुमकिन नहीं।
बुनियादी तौर पर यह मौजू 4 अहम ज़िमनी मौज़ूआत पर मुहित है, जो इस तरह है: इंशा पर्दाजी की रिवायत, इंशा पर्दाजी के मसाइल और इंशा पर्दाजी के निकाह, जो इस सेमिनार की थीम है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंशा पर्दाजी दास्तान, नावल, अफसाना या सवाने निगारी वगैरह की तरह कोई सिंफ नहीं है। इंशा पर्दाजी कोई सिंफ नहीं है। तमसील, शऊर की रौ, तजरीदियत या जादुई हकीकत निगारी वगैरह की तरह ये कोई तकनीक भी नहीं है। हालांकि हर तकनीक की नमूद इसी की दामन तरबियत में होती है। अब मैं इस तारीख साल 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास का आखिरी मरहला, जिसे हदायत शक्र कहते हैं, अदा करने के लिए मैं आयशा सिद्दीक़ा आपके सामने हाजिर हूँ। ये शानदार और कामयाब इफ्तिताही इजलास गोया इस बात की ज़मानत है कि हमारे ये 2 रोज़ा कौमी सेमिनार अपने अगले मरहल भी पूरी कामयाबी के साथ तय करेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं हमारे हरदिल अजीज वाइस चांसलर जनाब गौरी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप बावजूद अपनी गोनागो मसरूफियात के हमारे इस 2 रोज़ा सेमिनार में तशरीफ लाए और न सिर्फ सेमिनार का इफ्तिताह फरमाया और अपने ज़रीन ख़यालात का भी इजहार भी फरमाया। आपकी आमद से हमारे सेमिनार की जीनत में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि इसे आपने 4 चांद लगा दिए। सर, मैं शोबे उर्दू की जानिब से आपकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करती हूँ। हमारे मेहमानान ने खुसूसी उर्दू दुनिया के खता और मुहक़्क़िक़ बुलंद पाया नक़ाद और हरदिल अजीज उस्ताद जनाब प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहमीरी साहब, वाइस चांसलर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर मोड़ पर चराग जलाना है अपना काम, तेवर हवा के क्या है हमें देखना नहीं। इस सेमिनार का सबसे अहम हिस्सा, जिसे सेमिनार की जान कहा जाता है, वो कलीदी खुतबा होता है। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, जिनका शुमार माहिरीन तकनीयात में होता है, अपने शानदार कलीदी खुतबे से इस सेमिनार की आन बान शान बढ़ा दी है। नेज़ हमारे इस सेमिनार के मुहादानिगारों को इंशा पर्दाजी के मसाइल, इम्कानात से मुताल्लिक़ हमें ऐसी कीमती मालूमात फराहम की जिन तक हमारी रसाई नामुमकिन है। आपके इस मालूमात अफ़ज़ा कलीदी खुतबे के लिए मैं समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये शेर आपके नजर करती हूँ। ऐसा सबक दिया कि रुत ही बदल गई, ऐसा सबक दिया कि रुत ही बदल गई, हम नाफहम थे अपने सेराब इल्म किया। इस तारीख साल 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के रूह रवां जनाब प्रोफेसर हबीब अहमद साहब और डॉक्टर जनाब अमानुल्लाह साहब का शुक्रिया 2-4 जुमलों में अदा करके सुबह जना मैं समझती हूँ कि सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि आप दोनों असातिज़ा ने इस सेमिनार का इनेकाद करके हम तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स की जिस तरह कदम पर रहनुमाई की है और हमें सीखने का जो मौका फराहम किए हैं, इन एहसानात का ना तो हम सिला दे सकते हैं और ना इन एहसानात को कभी भुला सकते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन दोनों असातिज़ा को सेहत और सलामती अता करे और इसी तरह आप दोनों हमारी सरपरस्ती फरमाते रहें। ये शेर आप दोनों की नजर करती हूँ। हम बेइल्म व बेअदब थे, हम बेइल्म व बेअदब थे, हमको तराश कर दुनिया इल्म व फन के काबिल बना दिया। मैं शोबे के तमाम तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स की तरफ से आप दोनों की खिदमत आलिया में समीम क़ल्ब से जगह देना चाहूँगी। करता है सारे दिन का हर एक तार शुक्रिया, सौ ज़बान से आपका 100 बार शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के सेमिनार का जो मौजू है वो उर्दू में इंशा पर्दाजी, रिवायत, मसाइल और इम्कानात वगैरह, जिसे शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम किया गया। ये बहुत ही मुनफरिद मौजू था, बहुत ही कारामद और बहुत ही मुफीद मौजू था, इन मानों में कि आजकल सिर्फ़ अदब पर बहुत सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें वगैरह की जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिसमें अदब और ज़बान दोनों शामिल हैं। अदबी तौर पर तख्लीक़ियत इंशा पर्दाजी की जान है और सेहत ज़बान, इल्म सर्फ़, इल्म हिजा और इल्म नहव वगैरह का जानना भी इसके लिए बेहद ज़रूरी है। आजकल बहुत कम
उर्दू ग्रामर पर, उर्दू क़वायद पर या लिखने के फ़न पर बहुत कम गुफ्तगू होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सेमिनार में, दो रोज़ा सेमिनार में इन पहलुओं पर भी नज़र डाली जाएगी और इन पहलुओं पर भी गुफ्तगू की जाएगी और जो नई पौध है, नई नस्ल है, उनको उसे जो है लिखने के फ़न से बहरावर किया जा सकता है। एक आज शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू में इंशा पर्दाजी की रवायत, मसाइल और इम्कानात के मौजू पर दो रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इफ्तिताह अमल में आया। इस सेमिनार के ताल्लुक़ से मेरा यह तासुर है कि यह अपनी नौइयत का सारे मुल्क में पहला सेमिनार है, क्योंकि इससे क़ब्ल मुख्तलिफ़ अदीबों पर, शायरों पर और मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर उर्दू में मुख्तलिफ़ शोबाहाए उर्दू की जानिब से या उर्दू के अंजुमनों और इदारों की जानिब से सेमिनार या कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद होते रहे हैं, लेकिन शोबा उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू इंशा पर्दाजी के मौजू पर ये जो सेमिनार मुनक़िद हो रहा है, उसकी इनफरादियत ये है कि इसमें उन्होंने एक बिल्कुल नए और अछूते पहलू को सेमिनार की थीम बनाया है, यानी उर्दू में इंशा पर्दाजी की रिवायत, मसाइल और इम्कानात। अब इसमें देखिए कि इंशा पर्दाजी जो है वो एक मुनफरिद चीज़ है, इसका इंग्लिश में तर्जुमा नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश में एस्से आमतौर पर हम कहते हैं इंशा पर्दाजी का मुतबादिल एस्से है, लेकिन इंग्लिश में जो एस्से होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और हमारी इंशा पर्दाजी में जो इंशा है वो अलग है। इंशा का मतलब होता है राइटिंग स्किल, लिखने की सलाहियत, लिखने का सलीक़ा, लिखने की इस्तेदाद, महारत। तो इस महारत का इजहार शायरी में भी होता है और नस्र में भी होता है। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि इंशा पर्दाजी का मुज़ाहरा सिर्फ नस्र में होता है, लेकिन इस सेमिनार के ज़रिए इंशा पर्दाजी के इजहार के जितने मुमकिना असालिब हैं या टेक्निक्स हैं या असनाफ़ हैं, मैं समझता हूँ कि उन सब को जो है उन सब पर बहस होगी, उन सब पर गुफ्तगू होगी और इंशा पर्दाजी के नए मैदान, नए ज़ाविये हमारे सामने आएंगे। ये इस सेमिनार की अहमियत है। हाँ जी, शोबे अरबी फ़ारसी और उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी में दो रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान उर्दू में इंशा पर्दाजी, रिवायत, मसाइल और इम्कानात का हमने इनाक़ाद किया था। दरअसल ये मौजू पर मुनाक़िद होने वाला पहला सेमिनार है। पूरे हिंदुस्तान में दीगर पहलुओं को लेकर उर्दू के सेमिनार मुनाक़िद होते हैं। जब हमने इस सेमिनार का इनाक़ाद किया, मक़ाला निगारों को हमने दावत दी। मंदूबिन की जानिब से जो हमको रद्द अमल हुआ वो दरअसल उनके ज़हनी इंतशार का मुज़ाहरा था। हमें जो 25 मक़ाले मौसूल हुए इस ज़िम्न में, वो अक्सर सिर्फ़ इंशाइया पर मुश्तमिल थे। तो बात इससे ये समझ में आई कि उर्दू का इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा हल्का है, इतनी वसअत है उर्दू में, उर्दू के माहिरीन, पूरे माहिरीन के अंदर ये परेशानी क्यों कर आई समझ में नहीं आई कि सिर्फ़ इंशाइया को इंशा पर्दाजी के फ़हम में उन्होंने समझ लिया है। हमने बार बार उनको इस इश्कालात का जवाब भी दिया था, बावजूद उसके भी लोग लिखने से झिझक रहे थे। बहरकैफ हमने आज इस सेमिनार में कलीदी ख़िताब के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर जनाब प्रोफेसर नसीमुद्दीन फ़रीद साहब को कलीदी ख़िताब के लिए मदऊ किया था। उन्होंने जो ख़िताब यहाँ पे कलीदी ख़िताब पेश किया था वो दरअसल ये सेमिनार का हासिल था। उन्होंने तमाम पहलुओं को यहाँ पे तफसील से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सिर्फ़ नस्र में ही इंशा पर्दाजी नहीं होती, बल्कि नज़्म और उर्दू शायरी में भी इंशा पर्दाजी हम तलाश कर सकते हैं। उन्होंने ये भी साबित किया कि उर्दू इंशा पर्दाजी की रिवायत उर्दू शायरी से होती है। उर्दू शायरी की इब्तिदा ही उर्दू इंशा पर्दाजी की भी इब्तिदा है। उन्होंने इस ज़िम्न में बहुत सारे हवाले हमको अशार भी पेश किए। उन्होंने हर मैदान को लेकर, हर पहलू को लेकर उर्दू के अदब की जितनी भी असनाफ़ हैं तमाम में इंशा पर्दाजी मौजूद है।
لیکن بات یہ ہے ہم نے جو موضوع رکھا تھا اصل میں یہ دور حاضر کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جائے. انشاء پردازی کی روایت تو رہی ہے, رہے گی, لیکن روایت کے ساتھ ساتھ اس کے جو مسائل ہیں لکھنے والوں کیوں نہیں ہیں ہمارے درمیان آج. ادب و انشاء کے حوالے سے جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اردو ادب میں لکھنے والوں کی بہت کمی ہے ہمیں, اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں اس پر بھی اس 2 روزہ سیمینار میں بحث و مباحثے ہوں گے. تو ابھی جو افتتاحی اجلاس رہا اس سے ہمیں ایک راہ ملی, ایک واضح موضوع کے حوالے سے جو وضاحت ہمیں ہوئی ہے. تو امید ہے کہ جو دوپہر میں جو نشستیں منعقد ہوں گی اور آگے چل کر کل 4 نشستیں ہوں گی, اس میں سے ایک نشست کو ہم نے آن لائن بھی منعقد کرنے کا ارادہ کیا ہے. تو اس حوالے سے اردو ادب میں انشاء پردازی کی روایت, مسائل اور امکانات کا یہ پوری دنیا میں پہلا سیمینار ہوگا. اور اس کے بعد انشاء پردازی کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے دیگر جامعات سے پورے ہندوستان بھر میں ایک کے بعد دیگر اس طرح کی اس نوعیت کے اس موضوع سے متعلقہ سیمینار منعقد ہوں گے. اس سے یقیناً یہ فائدہ ہوگا کہ اردو ادب میں انشاء پردازی کے حوالے سے جو اب تک نظر انداز کرتے آ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اردو ادب میں انشاء پردازی کے حوالے سے یقیناً ایک باب کا اضافہ ہوگا. اسی امید کے تحت ہم نے اس سیمینار کا انعقاد کیا تھا, جس کا افتتاح مدراس یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر گوری صاحب نے کیا تھا, اور اس میں ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول کے وائس چانسلر پروفیسر مظفر علی شاہ میری صاحب بطور مہمان خصوصی شامل رہے. پروفیسر ڈاکٹر قاضی حبیب احمد کی صدارت میں میں ڈاکٹر امان اللہ ہوں, اس سیمینار کا ڈائریکٹر ہوں.